Hello friends, I am Balwant Singh, Assistant Professor in the Department of Electronics and Communication Engineering in IMS Engineering College, Ghaziabad, which is affiliated with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. In the last lecture, we had discussed about the continuous time Fourier transform, and where we see that with the help of the Fourier transform, we had convert a signal which is in time domain into the frequency domain. Basically, if we talk about the mathematical description of the signal, if you have a signal x t and the Fourier transform of that signal is x omega, then x omega will be integration from minus infinite to plus infinite x t into e की power minus j omega t dt. This is the mathematical description of the Fourier transform. In the last lecture, we had also discussed about the basic properties of the continuous time Fourier transform, and in this lecture we will continue the same. And here first one property is the Parseval's relation. Basically, Parseval's relation define the energy of the signal in the frequency domain. Means if we want to calculate energy of the signal, and if we have a signal which is represented in the frequency domain, then we can also calculate the energy of the signal. Here you can see that this is the basic definition, this is the basic mathematical representation of the energy signal E. E is equals to minus integration minus infinite to plus infinite mod x t square dt, and mod x t square we can write x t multiplied by with the help of conjugate of x t, and if we provide the formula of the inverse Fourier transform in this signal, means on the conjugate of x t, then we can get integration from minus infinite to plus infinite conjugate of x j omega e की power minus j omega d omega. Basically, you have to understand this one. Basically, inverse Fourier transform x t is defined as 1 upon 2 pi integration from minus infinite to plus infinite, minus infinite to plus infinite x omega into e की power j omega. This is the basic description. And if you want to take conjugate of x t, then you have to put conjugate of this one, and if we take the conjugate of this one, then you will get this one. Okay. That is why here e की power माइनस जे ओमेगा टी है, अदरवाइज ई की पावर जे ओमेगा टी होना चाहिए अगर हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं. बस थोड़ा सा यही कंसेप्ट है जिसको हमको ध्यान में रखना है. तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई हमने बाहर रख लिया है बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट. अब ये हो गया कॉन्जुगेट ऑफ एक्स जे ओमेगा. अब ध्यान से देखो, थोड़ा मैथमेटिकल अरेंजमेंट करते हैं हम यहाँ पे. मीन्स हमने क्या करा, ये जो एक्स टी है इसको इस इंटीग्रेशन के अंदर लेके गए और ये एक्स जे ओमेगा हमने बाहर कर लिया. अब देखो एक्स टी यहाँ गया तो ये डी टी भी हम ले आए, यानी टी के रिस्पेक्ट में हमने मैथमेटिकली इस तरह से इसको अरेंज कर लिया. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीग्रेशन. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी विच इज रिप्रेजेंटेड बाई, मैंने यहाँ पे एक्स ओमेगा लिखा है, कई बुक्स में एक्स जे ओमेगा लिखा गया है, तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता. एक्स जे ओमेगा सपोज करते हैं इसका ये जो है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने एक्स जे ओमेगा से रिप्रेजेंट किया है. तो देखो फिर क्या हो गया, एक्स कॉन्जुगेट ऑफ एक्स जे ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई एक्स जे ओमेगा, क्या हो जाएगा आपका मॉड एक्स जे ओमेगा डी ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ पे समझने की जरूरत ये है कि सपोज करते हैं आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में कोई सिग्नल दिया हुआ है,
ठीक है, टाइम डोमेन में आपको पता नहीं व्हाट इज द सिग्नल, देन विदाउट कन्वर्टिंग द सिग्नल इन द टाइम डोमेन you can calculate energy of the signal. And here mod x j omega square is energy density spectrum, that is EDS, energy density spectrum, EDS. ठीक है, so this is the basic statement of the Parseval's relation, means integration from minus infinite to plus infinite mod x t square dt equals to 1 upon 2 pi integration from minus infinite to plus infinite mod x j omega square d omega. Let's have a example which जिस पे हमने पार्सवेल्स रिलेशन को अप्लाई किया है. यहाँ पे in this representation, in this figure representation, we have a signal which is represented in frequency domain. You can easily see that the x axis is represented by x omega and y axis is x axis is represented by omega and y axis is represented by x j omega. And x j omega, what is x j omega? X j omega is the frequency domain representation of the x t. Means if you observe both figure, second one also you can see that is figure B, here also x axis is represented by omega, y axis is represented by x j omega. तो यहाँ पे ये क्या जो आपका फिगर दिया है इन फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिया गया है. ठीक है, अब हमको एनर्जी पता है. अगर हमसे एनर्जी की बात करी जाए तो व्हाट इज एनर्जी, तो हमको यही पता है एनर्जी E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट मॉड एक्स टी स्क्वायर डी टी स्क्वायर, ये हमको पता है. ठीक, तो अब हमको या तो इस सिग्नल को हम क्या करें, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिया है, इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करें, यानी हम एक्स टी निकालें. पहले कैसे निकलेगा, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म करके हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये एक्स टी निकल के आ जाएगा. और उसके बाद जो फॉर्मूला दिया हुआ है एनर्जी का उसमें अप्लाई कर दो, यू विल गेट द एनर्जी. ठीक है, तो लेकिन if we apply the Parseval's relation, if we apply the Parseval's relation, then हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो पार्सवेल्स रिलेशन जो हमने निकाला है एनर्जी निकालने का, E इक्वल्स टू, अभी थोड़ी लास्ट स्लाइड में हमने देखा था 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट मॉड एक्स जे ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा. अब इसी का अगर हम मॉड लेंगे, मैग्नीट्यूड मॉड लेके स्क्वायर कर देंगे, तो चाहे ए फिगर हो चाहे बी फिगर हो, दोनों का मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा. वैसे भी अगर इसकी एनालिसिस आप करना चाहते हो तो मैथमेटिकल भी कर सकते हैं, लॉजिकल भी कर सकते हैं. इसका हम यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम मॉड लेंगे तो ये अंडर रूट पाई बाई 2, यहाँ से लेके यहाँ सिग्नल का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, और इस वाले सिग्नल का मैग्नीट्यूड हो जाएगा पाई हो जाएगा. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद आपको ओमेगा के रिस्पेक्ट में क्या ले लेना है, इंटीग्रेशन ले लेना. सिंपल मैथमेटिक्स है, द बेसिक मैथमेटिक्स, देन यू विल गेट द वैल्यू. इंपॉर्टेंट अगर हम इस फिगर की बात करेंगे, हम इसका जब हम मॉड स्क्वायर लेंगे तो ये निगेटिव जो है आपका, ये निगेटिव मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. मीन्स यू विल गेट, ये जे अपॉन अंडर रूट पाई है तो ये हो जाएगा जे स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, लेकिन मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, पाई हो जाएगा. और ये देखो माइनस जे अपॉन अंडर रूट पाई का भी जब हम स्क्वायर लेंगे, ये भी जे स्क्वायर बाई पाई हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका जे स्क्वायर बाई पाई, या इसी को हम लिख सकते हैं, जे स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 अपॉन पाई हो जाएगा, -1 अपॉन पाई. अब समझना इस बात को, जे स्क्वायर बाई पाई हम यहाँ ऐसे दिखा रहे हैं, अगर -1 अपॉन पाई दिखाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 अपॉन पाई. ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके +1 तक. बस -1 से लेके आप अगर आप इस वाले फार्मूले में अब आप रख दो, ये क्या है सेकंड वाले के लिए, अगर हम देखें, मैं ऊपर थोड़ा कर देता हूँ, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई
इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके +1 तक, ये हो गया आपका -1/पाई डी ओमेगा। बस इसका हम इंटीग्रेशन कर दें तो हमको क्या निकल के आ जाएगा, एनर्जी हमको पता चल जाएगी कि इसकी एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ द पासकल्स थ्योरम, अब यहाँ पे यही चीज़ देखो, E = 1/2 पाई इंटीग्रेशन करा गया है, तो फिगर ए की जो एनर्जी निकल के आ रही 5/8 आ रहा है और इसका 1 आ रहा है। ठीक है, सेकंड वाले का जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यू कैन इवेल्युएट लाइक दिस मैनर, -1 to लेके 1 तक डी ओमेगा। ठीक है, हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा आपका सिर्फ ओमेगा आएगा, ओमेगा -1 से लेके +1, सिंपल मैथमेटिक्स करके आप इसको कैलकुलेट कर लेना। तो यू विल गेट द वैल्यू, एनर्जी ऑफ फिगर बी इज़ 1 एंड एनर्जी ऑफ फिगर बी इज़ 5/8। मैथमेटिक्स की पार्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको करनी है, डी निकालना है, एंड डी इज़ यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है, डी इज़ d/dt xt at t = 0, d/dt xt at t = 0। यहाँ पे देखो हम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, यू कैन सी इन दिस स्लाइड gt = d/dt xt। अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, दिस विल बिकम, अगर डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं, दिस विल बिकम j ओमेगा x j ओमेगा, जहां पे ये x j ओमेगा क्या है, दिस इज द xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xt = x j ओमेगा। ठीक है, तो यही आपका क्या है, g j ओमेगा से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और इन द लास्ट स्लाइड यू कैन सी दैट what is d, = d/dt xt, so d/dt xt = d, और वहां पे t = 0 पे तो हमने gt t = 0 यहाँ पे हम रखेंगे, t = 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, g 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 पाई। हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे, 1/2 पाई -∞ to +∞ g j ओमेगा डी ओमेगा, g j ओमेगा डी ओमेगा। ओके, सो यू d = क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ to +∞ g j ओमेगा डी ओमेगा, एंड पुट द वैल्यू ऑफ जी जे ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे जी जे हमने कंफ्यूजन ना हो, वास्तव में क्या है, अगर लास्ट वाले इक्वेशन में देखो, हमने जो दोनों वैल्यू है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, यहाँ पे इसको हम मान सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, मान लो जी जे ओमेगा, कोई फर्क नाम का है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए वहाँ पे कर दिया गया, जिससे कंफ्यूजन ना हो, एक्सटी और जीटी में कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो डी = क्या हो गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ to +∞ j ओमेगा x j ओमेगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ, यहाँ देखो जी जे ओमेगा = j ओमेगा x j ओमेगा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ लास्ट स्लाइड में हमको यहाँ पे ऐसे करना है, इसको एक चीज में लिखना भूल गया, j ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, j ओमेगा x j ओमेगा = g j ओमेगा है, तो वो वैल्यू हमने क्या करा, यहाँ पे पुट कर दिया, x j ओमेगा की जगह ये पुट कर दिया, तो x j ओमेगा = g j ओमेगा। एक थोड़ा सा करेक्शन है, g ओमेगा बाई j हो जाएगा, = j ओमेगा। मैंने मल्टीप्लिकेशन लिख दिया था, डिवीजन होगा, क्योंकि यहाँ रिलेशन में आप देखो j ओमेगा x j ओमेगा = g j ओमेगा है, तो x j ओमेगा = क्या हो जाएगा, g j ओमेगा अपॉन j ओमेगा। ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, जी जे ओमेगा की जगह ये वैल्यू रख दिया, तो आपका ये आ जाएगा। बस हमको इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, एक्स जे ओमेगा को इंटीग्रेट करना है, बस दोनों इस सिग्नल का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी इंटीग्रेशन का मतलब हम एरिया निकालेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे।
दूसरे सिग्नल का भी इंटीग्रेशन करेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट द इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड सिग्नल, आप आसानी से देख सकते हैं कि वी विल गेट, क्योंकि जे ओमेगा भी है, वी विल गेट 0 फॉर फिगर 1 एंड -1 अपॉन √2 पाई फॉर फिगर 2. सो हियर वी डू नॉट कंसंट्रेट ऑन द मैथमेटिक्स. यहाँ पे मैथमेटिक्स तो इंटीग्रेशन की बात है, वो हम अब देख लेंगे. आप सब देख सकते हैं यहाँ पे कंसेप्ट क्या है. पार्सेवल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग if we have a signal in frequency domain, then we can also calculate the energy of the signal. So next आगे बढ़ते हैं convolution property. Convolution property. Convolution property, in the last lectures we had see the convolution property. यहाँ पे Fourier transform, अगर टाइम डोमेन में दो सिग्नल है जिनका हम अगर कन्वोल्यूशन ले रहे हैं टाइम डोमेन में दो सिग्नल का, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. यही आपकी कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी होती है. जैसा कि आपको दिखाया गया है y t इक्वल्स टू एक्स टी कन्वोल्यूशन विद एच टी. अगर इसको आपने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम लेते हैं तो y जे ओमेगा इक्वल्स टू एक्स जे ओमेगा इंटू एच जे ओमेगा हो जाएगा. देखते हैं कैसे हो जाएगा ये. y जे ओमेगा इक्वल्स टू एक्स जे ओमेगा कैसे हो जाएगा. अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लें, इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लें, तो सपोज करो ये वाई जे ओमेगा है, इसमें हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लगा देंगे. इस वाले सिग्नल में फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स टी कन्वोल्यूशन विद एच टी, क्योंकि ये अब सिग्नल आपका ये है, इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी. अब यहाँ पे फिर हम कन्वोल्यूशन के जो फार्मूला होता है वो लगा देंगे. एक्स टी और एच टी का कन्वोल्यूशन होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स टाउ इंटू एच टी माइनस टाउ डी टाउ. ठीक है, वो फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, एक्स टाउ इंटू डी टाउ. ठीक है, अब ये फार्मूला लगाने के बाद सिंपल मैथमेटिकल अरेंजमेंट बचता है. हमने एक्स टाउ बाहर निकाल के कर लिया, ये आपका ये सिंपल सिग्नल बना. अगर हम इसको ध्यान से देखें, दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एच टी माइनस टाउ, एच टी माइनस टाउ. अब देखो, अगर एच टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एच जे ओमेगा है, तो अकॉर्डिंग टू द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यहां पे हमने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे. टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है, तो ये हो जाएगा एच टी माइनस टाउ का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका ई की पावर माइनस जे ओमेगा टाउ एच जे ओमेगा. ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट हमने अप्लाई कर दिया. तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये फॉर्मूला फोरियर ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है. हमने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये लगा दी. ठीक, सॉरी यहां तक डी टाउ वाला. अब देखो मैथमेटिकली फिर हमने अरेंज किया, एच जे ओमेगा है, ये ओमेगा के सब सारे टर्म ओमेगा है, तो इस इंटीग्रेशन अगर देख लो तो टाउ के रिस्पेक्ट में है, तो एच जे ओमेगा विल बी कांस्टेंट, तो हमने उसको बाहर निकाल लिया. अगेन व्हाट इज दिस, दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टाउ, दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टाउ. तो एक्स टी हो चाहे एक्स टाउ हो, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स जे ओमेगा. तो हमने शुरुआत कहां से करी थी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था. ये क्या है, कन्वोल्यूशन है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या आ रहा, आपका मल्टीप्लिकेशन आ रहा, जहां पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म इज एक्स जे ओमेगा और एच टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है आपका एच जे ओमेगा है. नेक्स्ट on the base of convolution property, let's have a look example. जैसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं. इन दिस सिंपल एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका दिया हुआ है एच टी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ए टी यू टी, जहाँ पे ए इज ग्रेटर देन 0 मीन्स इसका मतलब क्या है, राइजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल है.
एंड एक्स टी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस बी टी यू टी। ठीक है, इन दोनों का हमको क्या करना है, कन्वोल्यूशन निकालना है, इन दोनों सिग्नल का कन्वोल्यूशन निकालना है, यानी हमको एक्स टी कन्वोल्यूशन विद एच टी करना है। हमको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, एच टी कन्वोल्यूशन विद एक्स टी निकालना। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लिया और दूसरा हमने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लिया। एच टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एच जे ओमेगा, एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स जे ओमेगा। हमको पता है लास्ट हमने एग्जाम्पल में कर रखा है ई की पावर माइनस ए टी यू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ई की पावर माइनस ए हो चाहे बी हो, सेम होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन ए प्लस जे ओमेगा और 1 अपॉन बी प्लस जे ओमेगा। अब देखो, अगर हमको इनका कन्वोल्यूशन चाहिए और इनका कन्वोल्यूशन हम मान लेते हैं वाई टी है, ठीक, वाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हम मान लेते हैं वाई जे ओमेगा है, सिंपल सी बात है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जे ओमेगा, तो हमने वाई जे ओमेगा सपोज करा एक टर्म माना है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमको इसी का अगर हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लें, वाई जे ओमेगा का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लें, तो वाई टी हमारा निकल के आ जाएगा। तो हमको, हमारा पर्पज़ यही है, अब इसको फार्मूले में ना अप्लाई करके हम क्या करें, सिंपल एक ट्रिक लगाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, विद द हेल्प ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वाई जे ओमेगा इक्वल्स टू ए, पार्शियल फ्रैक्शन हमने कर लिया, ए अपॉन ए प्लस जे ओमेगा प्लस बी अपॉन बी प्लस जे ओमेगा। ए और जो हमने ए और बी वैल्यू मानी है उसको सिंपल हमने कैलकुलेट कर लिया, दोनों की वैल्यू हमारे सामने आ गई। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद 1 अपॉन बी माइनस ए कॉमन आ गया, तो ये हो गया 1 अपॉन ए प्लस जे ओमेगा, 1 माइनस 1 अपॉन बी प्लस जे ओमेगा, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के बाद। अब देखो सिंपल सी चीज है कि अगर ई की पावर माइनस ए टी यू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन ए प्लस जे ओमेगा होता है, तो देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म बाई डायरेक्शनल होता है। तो ए प्लस जे ओमेगा का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ई की पावर माइनस ए टी यू टी होगा, है ना। तो अगर हम इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, आई एफ टी से मैं यहाँ चलो रिप्रेजेंट कर देता हूँ, देन क्या हो जाएगा इसका, ई की पावर माइनस ए टी यू टी और दूसरा हो जाएगा ई की पावर माइनस बी टी यू टी, सिंपल। और 1 अपॉन बी माइनस ए आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। सो दिस इज द basically example which justify the convolution property of the signal. Another example we have a two signal xt and st, sinc function यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये आपका sinc फंक्शन है, sinc t, लास्ट कई बार हम जो कहा sinc t इक्वल टू होता है साइन पाई टी डिवाइडेड बाई पाई टी, साइन पाई थीटा, साइन पाई टी डिवाइडेड बाई पाई टी। तो यहाँ देखो ये भी आप इसको चेंज कर सकते हैं हम इस फॉर्म में। तो ये सिंक फंक्शन ही है बेसिकली। अगर, और हाँ, हमको ये भी पता है कि अगर हम सिंक फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो रेक्टेंगल पल्स आता है, रेक्टेंगल पल्स आता है, -1 से लेके +1 आएगा, मैग्नीट्यूड 1 रहेगा यहाँ पे, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, ठीक है। तो ये सिंक फंक्शन ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी और इन सब के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं। ये एक ध्यान रखने वाली बात है कि रेक्टेंगल पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो सिंक फंक्शन आता है, और सिंक फंक्शन का भी अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो रेक्टेंगल पल्स आता है। और ये वाइस वर्सा भी एप्लीकेबल है कि अगर हम सिंक फंक्शन का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो रेक्टेंगल पल्स आएगा, और रेक्टेंगल पल्स का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो सिंक फंक्शन आएगा, ठीक है। ये देखने वाली बात है। तो एग्जांपल्स में हम देख चुके हैं। तो एस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका रेक्टेंगल पल्स आएगा, सिमिलरली ये भी आपका रेक्टेंगल पल्स ही आएगा, -1 से लेके +1 तक, ठीक है। ये डिफाइन भी कर दिया गया है। एच जे ओमेगा का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आ गया, जहां से -1 आएगा। यहाँ चूंकि यहाँ पे ओमेगा रखा हुआ है, यहाँ पे ओमेगा सी है, तो हम चलो इसको कर लेते हैं -ओमेगा सी, सॉरी, -ओमेगा सी से +ओमेगा सी, यहाँ पे ओमेगा सी दिया हुआ है।
और यहाँ पे देखो ओमेगा आई दिया हुआ है, तो चलो हम इसको ओमेगा आई कर लेते हैं, ओमेगा आई। ठीक है, अब देखो ये आपके आ गए। अब इनका क्या है, अगर हम कन्वोल्यूशन ले लें, अगर हमको एक्स टी और एस टी का कन्वोल्यूशन लेना है, तो अकॉर्डिंग टू द कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी इसका मतलब क्या है कि हमारा वाई जे ओमेगा जो है एक्स जे ओमेगा और एच जे ओमेगा का क्या लेना है, हमको मल्टीप्लिकेशन लेना। तो हमने मल्टीप्लिकेशन ले लिया, इन दोनों सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन लेना है तो हम ले सकते हैं। बस हमको ओमेगा सी और ओमेगा आई के बारे में सोचना है, जिसको हमने सपोज करो यहाँ पे ओमेगा 0 मान लिया। यहाँ पे फाइनली हम डिसाइड कर सकते, क्यों? क्योंकि ओमेगा सी और ओमेगा आई पे डिपेंडेंट करेगा ना। अगर दोनों बराबर होंगे तब तो ठीक है, अगर दोनों में डिफरेंस होगा तो इनका कन्वोल्यूशन अलग अलग आएगा, साइन ओमेगा सी टी अपॉन पाई टी इफ ओमेगा सी इज लेस देन और इक्वल टू ओमेगा आई, एंड अगेन साइन ओमेगा आई टी अपॉन पाई टी इफ ओमेगा आई इज लेस देन और इक्वल टू ओमेगा सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या है, टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होता है। सिमिलरली आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन जो है, हम कह सकते हैं कि टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। यही आपकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, जिसको यहाँ पे मैथमेटिकली दिखाया गया है कि एस टी इंटू पी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपका आ जाएगा आर जे ओमेगा इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एस जे थीटा पी जे ओमेगा माइनस थीटा डी थीटा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जहां पे एक सिग्नल दिया हुआ है एस टी, जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एस जे ओमेगा दिया हुआ है। दूसरा सिग्नल पी टी कॉस ओमेगा नॉट टी है, सपोज करें हैं, उसका भी फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे निकाला गया है, एंड इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। और अगर हम इन दोनों का देखो, टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई करना है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूट करना पड़ेगा इन दोनों सिग्नल को। हम अगर सपोज करते हैं ये आपका एस टी है टाइम डोमेन में और ये टाइम डोमेन में पी टी है, और हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, कन्वोल्यूट करना पड़ेगा। और इन दोनों लास्ट जो सिग्नल है, इन दोनों को कन्वोल्यूशन करेंगे तो यू कैन गेट दिस सिग्नल, ओके, which is mathematically represented by 1/2 s j omega minus omega naught plus 1/2 s j omega plus omega naught। ठीक है, दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अगेन अगर हम कंसीडर करते हैं, अगर फिर से हम कंसीडर करते हैं आर टी इज द मल्टीप्लीकेशन विद द पी टी एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाई जी टी, एंड पी टी हमको पता है कॉस ओमेगा नॉट टी है। तो इफ दिस इज द आर टी, टाइम डोमेन में ये आपका आर टी है, और ये फिर हम इसको पी टी जो है उससे फिर अगर हम टाइम डोमेन में कन्वोल्यूट करते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये दोनों सिग्नल क्या होंगे, सॉरी टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों सिग्नल क्या होंगे, कन्वोल्यूट होंगे। देन आफ्टर कन्वोल्यूशन यू विल गेट दिस रिजल्ट। विद द हेल्प ऑफ द सिंपल एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड एक्स टी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दो साइन फंक्शन दिए हुए हैं, हमने मैथमेटिकली थोड़ा अरेंज करके यहाँ पे क्या लिख दिया, इस तरह से इसको डिफाइन कर दिया है। तो ये सिंक फंक्शन बन गया, ये सिंक फंक्शन, ये भी सिंक फंक्शन, दो सिंक फंक्शन बन गए। अब अगर इसको हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाइड बाई इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर दोनों में हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें तो आपका देखो ये आपका ये सिग्नल देखो, ये सिंक फंक्शन, ये वाला सिग्नल हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, यहाँ पे देखो कोई ओमेगा सी नहीं है लास्ट क्वेश्चन की जगह, तो ये हो जाएगा -1 से लेके +1। इस वाले सिग्नल को देखो तो रेक्टेंगल पल्स है, ये क्या हो जाएगा 1/2 ही मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है, ये भी 1/2 होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा -1/2 तो +1/2 सिंक फंक्शन। ठीक है, सिंक फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल पल्स आ जाएगा। और रेक्टेंगल पल्स
अब इन दोनों पल्स का अगर हम चूंकि ये टाइम डोमेन में देखो कन्वोल्यूट कर रहे हैं, तो इन दोनों रेक्टेंगल पल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ सिग्नल एक्स जे ओमेगा। मल्टीप्लीकेशन आप देख सकते हैं, इसको लॉजिकली आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्रीवियस। सो थैंक यू वेरी मच।